अस्सलाम वालेकुम। हमारी न्यूज़ से मैं आप लोगों का होस्ट बात कर रहा हूँ साद करीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्शन के ऊपर कि पाकिस्तान के अंदर 2023 के अस्सलाम वालेकुम, दिस इज साद करीम वंस अगेन। कराची में बड़ी बारिश वगैरह हो रही है। बेसिकली यार कल मैं घर आया हूँ 3 बजे, तो बहुत ट्रैफिक था और पूरा जो बिग रोड है वो पूरा ट्रैफिक से भरा हुआ था। बाय द वे मैं आज आप लोगों के साथ एक अपने फाइनल टर्म की वीडियो शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग ने एक छोटा सा न्यूज़ पैकेज बनाया, तो उसको थोड़ा विजिट करते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। हमारी न्यूज़ से मैं आप लोगों का होस्ट बात कर रहा हूँ साद करीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्शन के ऊपर कि पाकिस्तान के अंदर 2023 के इलेक्शन क्यों डिले हो जा रहे हैं। तो आइए हम पहले जो पिछली प्रीवियस इलेक्शन रिकॉर्ड है उसको देखते हैं और 2023 के इलेक्शन को देखते हैं कि ये हमारे इलेक्शन क्यों डिले हो रहे हैं। तो हमारी टीम ने एक रिसर्च रिपोर्ट बनाई है कि उसके ऊपर थोड़ी नज़र डालेंगे। आइए। In the years spanning from 1947 to 1958, Pakistan experienced a notable absence of direct national level elections. During this period, provincial elections were held periodically, making a distinctive phase in the country's early political landscape. Moving on to 1970, Pakistan witnessed its first direct general election since gaining independence from British India. Following years of struggle, the military government reluctantly handed over power to democratically elected officials. In East Pakistan, the election took on the guise of a referendum for self-governance among the Bengali citizens, constituting a majority of the population. The Awami League secured victory with 167 seats out of 313, positioning Sheikh Mujibur Rahman to become Pakistan's inaugural democratically elected Prime Minister. However, fast forward to 1977, in a surprising move despite the constitution's prescribed 5-year tenure, Mr. Zulfikar Ali put to announce early elections on January. Just 3 days later, on January 10, he recommended dissolving the National Assembly. By March 7, elections were in full swing, but the opposition cried foul, accusing the government of election rigging, leading to a boycott of provincial assembly elections. The aftermath saw the opposition's refusal to accept National Assembly deserts and take the oath, blending the nation into a severe political crisis. In response to the chaos, then Army Chief General Muhammad Ziaul Haq imposed martial law on July 5, 1977, marking a very difficult chapter in Pakistan's political history. A shift in the political landscape occurred with the formation of a new government in 1985, led by the relatively lesser-known figure Muhammad Khan Junejo. We entered the political stage. Meanwhile, supporters of the late President Muhammad Ziaul Haq united into the 9-party alliance, Islami Jamuni Ittihad, backed by intelligence agencies. This laid the groundwork for a decade-long 2-party system with the left-wing PPP and the right-wing IGI and its successor, the Pakistan Muslim League known. In the National Assembly, the PPP emerged as the largest party, securing 94 out of 207 seats, while the IGI followed closely with 56 seats amidst a voter turnout of just 43%, forming a government with other left-wing parties, including the Muttahida Qawmi movement. Benazir Bhutto made history by becoming the first female prime minister in a Muslim country. Despite widespread expectations of a PPP victory, the 1990 elections delivered a surprising outcome as the Islamic Jammu Ittihad secured 111 out of 207 seats. The People's Democratic Alliance managed only 44 seats in the National Assembly with a relatively low voter turnout of 45%. The IGI's parliamentary leader, Nawaz Sharif, emerged as the Prime Minister while Benazir Bhutto assumed the role of opposition leader. Worth noting that in 2012, the Supreme Court ruled that the elections had been marred by a raging, adding a controversial layer to the political narrative. In 2002, general elections held under the military government of Pervez Musharraf, the political landscape saw significant shifts. With both Benazir Bhutto and Nawaz Sharif in exile, the mainstream parties Pakistan People's Party and Pakistan Muslim League faced restrictions. To navigate these challenges, Pakistan People's Party created Pakistan People's Party parliamentarians under Amin Fahim's leadership, while Pakistan Muslim League divided into factions, one loyal to Sharif and another forming the pro-Musharraf Pakistan Muslim League under Mia Muhammad Azhar.
तो नाज़रीन, आप लोगों को ये हमारी रिपोर्ट कैसी लगी? उम्मीद है आप लोगों को ये रिपोर्ट हमारी पसंद आई हो। तो अब हम चलते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से पे, जहाँ पर हमारे रिपोर्टर सैयद फरहान अली शाह, जो कि बहुत ही टैलेंटेड रिपोर्टर हैं, तो उनसे जानते हैं कि मलिर एक्सप्रेस कहाँ तक तैयार होने वाला है और कहाँ तक तैयार हो चुका है। तो आइए वहाँ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सईद फरहान और मैं मौजूद हूँ मलिर में, जहाँ से एक मलिर एक्सप्रेस जो है वो निकल रहा है। यहाँ से ये मलिर एक्सप्रेस वहाँ टच होगा DHA, ये सीधा जाएगा मेरे टाउन। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मशीनरी पूरी लगी हुई है यहाँ पे, और ये एक्चुअली ये नदी कहलाती है जहाँ पे हम लोग तो यहाँ बचपन से रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पहले ये होता था कि पैसे वगैरह ये चीज़ें होती थी। अब सिंध हुकूमत ने ये सीन किया है कि भाई यहाँ पे वो मलिर एक्सप्रेस निकाल रहे हैं, जो कि सीधा जिनको शारे फैसल पे ट्रैफिक में इशू होता था, अब वो उनको इशू कम होगा। और यहाँ पे क्योंकि मलिर एक्सप्रेस निकल रहा है तो इससे हम लोगों को भी फ़ायदा होगा, और ट्रैफिक के जितने भी इशूज़ होते हैं उन सब में जो है आसानियाँ होंगी। और ये सीधा यहाँ से जाएगा भेजे टाउन, और अभी इस पर वर्किंग जारी है। मेरे ख्याल से ये 2 साल का ये प्रोजेक्ट है, तो होपफुली ये जल्दी जैसे ही बनेगा हम सब के लिए आसानियाँ पैदा होंगी। थैंक यू। तो नाज़रीन, आप लोग को हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट कैसी लगी तो कमेंट्स में अपनी ज़रूर राय दीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं प्रोग्राम के तीसरे मरहले की तरफ। तो आइए, हमारे गेस्ट हैं शेरियाल शेख साहब। तो शेरियाल साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि आपने ये स्टूडियो वाली लाइन कब से ज्वाइन की है? फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेरियाल है, शेरियाल शेख मेरा नाम है। मुझे इस फील्ड में 3 साल हो गए। मैंने डिप्लोमा किया है तलागोरी फोटोग्राफी इंस्टीट्यूट से, तो मुझे आई थिंक वहाँ से ड्रॉप किए हुए 3 साल हो गए। और जो प्रोफेशनल जो मेरी फील्ड थी ना, जो जिसमें मैंने प्रोफेशनल वर्क किया, वो मुझे 2 साल हो गए। ठीक है। 2 ईयर से काम करता हुआ आ रहा हूँ, जिसमें मैंने फैशन, कॉर्पोरेट एंड वेडिंग का काम करता था। मैं वीडियोग्राफर हूँ और 2 साल से मुझे एक्सपीरियंस इस फील्ड का। अच्छा शेरियाल साहब, मुझे आप ये बताइएगा कि आपको स्ट्रगल के टाइम पे कैसी मुश्किलात वगैरह आई और आपको क्या क्या चीज़ें फेस करने लगी कि यार ये मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने फिर भी करा क्योंकि आपको आगे कुछ बनना था। तो मुझे ज़रा ये बताइएगा। यार, सबसे पहले बात ऐसी कि मैं जिस इलाके से हूँ ना, वो है लियारी, और वहाँ पर बात करने का तरीका, वे ऑफ टॉकिंग हमारी बहुत ख़राब होती थी। हम लोग बोलते थे अबे तो, ये हमारी एक कमी थी जो कि इस फील्ड में आके मेरी पूरी हुई, जो मैंने फेस किया। मैं ज़्यादा बोलता था, हर किसी के बीच में बोलता था, जो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था। और मेरा काम मैं जब सीख रहा था, जब मैं इस फील्ड में आया, जब मैं सीख रहा था, तो मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ और उनसे इंस्पायर होकर मैंने ये फील्ड में आया था। मतलब आप ये देख लें कि इस फील्ड में ऐसा था कि नाइट स्टेप होता था, हम लोग रात रुके हैं। जब सीज़न लगता था शादियों का, जब वेडिंग का सीज़न था, तो और उसमें मतलब ऐसा था कि हमें ना बहुत चीज़ें फेस करने को मिली, क्योंकि कराची सेफ नहीं है। हम अगर कहीं अपना इक्विपमेंट्स या गियर्स कहीं लेके जाते हैं ना, तो हम वापस जो रात को जो हमारी टाइमिंग होती थी ना, असल में वेडिंग्स की टाइमिंग होती थी 7 से लेके रात के 10, 11, 12 तक की टाइमिंग होती थी। तो उस टाइमिंग के बीच में ना हमारे साथ ये होता था कि हम बाइक पे जाते थे, और बिल्कुल मतलब स्नैचिंग का बहुत डर होता था। बिल्कुल, आए दिन ही आपको पता है कि कराची के अंदर स्नैचिंग वगैरह और एक चीज सबसे ज्यादा जो मैंने ये फेस करी है कि यार तुम्हारी जबान रुकती है, तुम इस फील्ड में काम नहीं कर सकते। नहीं शेरियाल भाई, मैं आपको इस बात के ऊपर अप्रिशिएट करूंगा कि आपकी माशाल्लाह टॉकिंग पावर बहुत अच्छी है। मुझे कहीं भी है ना, कोई भी है ना यहाँ, मतलब मुझे फील्ड में जितने भी लोग मिले ना, उनमें से 100 में से कोई 10% लोगों ने कहा है कि यार तुम बोल नहीं पाते हो ना, तो तुम डील नहीं कर पाओगे क्लाइंट को। तो मैं इस वजह से पहले बहुत नर्वस था। फिर मैं लोगों से मिला, मैंने अपनी ये प्रॉब्लम शेयर करी, तो कहते यार देखो, तुम्हारी जबान नहीं बोलेगी तो हमारा काम बोलेगा। तो उसी हिसाब से मैं इस फील्ड को अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि मैंने काफ़ी ब्रांड्स के साथ भी काम किया, काफ़ी कॉर्पोरेट इवेंट भी किए, जो कि इसमें HBL हो गया, फ्रैंकल जबरदस्त। तो ये इवेंट्स में मेरा स्टार्टिंग है। अभी भी मैं जिस
जिस मौके पर हूँ ना, मतलब मैं जो गोल है मेरा वो अभी तक गोल अचीव नहीं हुआ, अभी भी स्टार्टिंग है कि ये गोल अचीव हो गया है। तो शरीर भाई मुझे आप ये बताइएगा कि आप फ्यूचर में मतलब क्या बनना चाहते हैं, तो ये भी ज़रा मुझे बताइएगा। यार फ्यूचर में मैं एक ना फैशन वीडियोग्राफर बनना चाहता हूँ, जो ज़बरदस्त। लाइक कमर्शियल, जैसे अभी इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह पे जो हमारे जो कराची के जो टॉप फेमस है ना फैशन वीडियोग्राफर, इनका नाम है तला यासीन, बिल्कुल। मैं उनसे इंस्पायर हुआ हूँ और मैं उनके काम तक पहुंचना चाहता हूँ। ये फ्यूचर है मेरा। इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर पहुंचेंगे। शेराज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, और उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। तो अल्लाह हाफिज़। तो मुझे ये बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो ये सीन है भाई, बाय द वे पेपर भी ख़त्म हो गए हैं मेरे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। चैनल पर बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कर देना।